Hello students, I am Drashti Patel from Saraswat International Academy. I teaching statistics of 12 commerce, chapter number 1, index number part 7. In previous video, we had learned cost of living index number. Now today, I would teach you next topic real wages. Okay, here first purchase power of money equal to 1 upon cost of living index number into 100, and second real wage equal to wage upon cost of living index number into 100. Now example 23, find the real wages for the worker class of city from the following data about their average monthly wage and the cost of living index number base year 2001. Find the purchasing power of money in the year 2015 by taking the base year 2001 and state the importance of this answer. Okay, यहाँ हमें real wages find करना है, तो first of all we write formula. Real wages equal to एवरेज मंथली वेजेस अपन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100. ओके, यहाँ हमें देखो ईयर दिया है 2010 टू 2015 तक. ओके, एवरेज मंथली वेजेस दिया है और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी दे दिया है. ओके, सो फर्स्ट कॉलम इज ईयर, सेकंड एवरेज मंथली वेजेस, थर्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड लास्ट रियल वेजेस. ओके, फॉर ईयर 2010. ओके, रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या है? एवरेज मंथली वेजेस अपन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100. सो 15,000 अपन 192 इंटू 100. ओके, सो आंसर इज 7812.5. चलो ईयर 2011 के लिए 15,600 अपन 203 इंटू 100. सो आंसर इज 7684.73. चलो ईयर 2012 के लिए 16,200 अपन 228 इंटू 100. सो आंसर इज 7105.26. ईयर 2013 के लिए 17,000 अपन 268 इंटू 100. सो आंसर इज 6343.28. ईयर 2014 के लिए 18,000 अपन 270 इंटू 100. सो आंसर इज 6666.67. वैसे 2015 के लिए भी करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 6968.64. Okay, the purchasing power of money is reciprocal of the cost of living index number of the current year with the respect to the base year. Okay, अभी purchasing power of the money का फॉर्मूला भी हमने यहाँ देखा, ये रहा. purchasing power of the money का फॉर्मूला क्या है? 1 upon cost of living index number into 100. Okay, so we using this formula we can say that the purchasing power of money in the year 2015 with the base year 2001. Okay, सब में ही हमें बोला है कि 2001 is a base year. So क्या है? 1 into 100 अपन cost of living index number of 2015. Okay, so यहाँ फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. So 1 into 100, so 100 अपन 2015 का हमें परचेसिंग पावर फाइंड करना है, तो हम ये लिख लिए 287, बिकॉज 287 इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ 2015. सो आंसर इज 0.3484. सो राउंड फिगर इज 0.35. Hence it can be said that if the unit of money is rupees, then the value of rupee in the year 2005 is 35 पैसे with the respect to the base year 2001. क्वेश्चन 7, ये सम आपको होमवर्क में करना है. देखो कैसे. कैलकुलेट द रियल वेजेस ऑफ द वर्कर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट देयर मंथली वेजेस. फाइंड द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इन द ईयर 2015 कंसिडरिंग द ईयर 2008 इज अ बेस ईयर. चलो यहाँ भी आपको रियल वेजेस फाइंड करना है, तो यहाँ भी आपको एवरेज मंथली वेजेस दे दिया और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी दे दिया है. ओके, तो आप रियल वेजेस फाइंड कर सकते हो. रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या है आपको पता है. ओके, चलो उसके बाद आपको परचेसिंग पावर ऑफ द मनी फाइंड करना है, बट कौन से ईयर का लेना है? 2015 का. सो 2015 का ये आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर लेना होगा. ओके, नाउ एग्जाम्पल 24, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे सम है. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेक्शन सी में 2 मार्क्स में आते हैं. ओके,
First, the price of wheat was 1600 per quintal in the year 2014 and it was 1800 per quintal in the year 2015. Okay, 2014 is a base year and 2015 is a current year. Okay, तो 2014 की प्राइस आपकी क्या होगी P0. सो P0 is 1600 एंड 2015 की प्राइस आपकी क्या होगी P1. सो P1 इक्वल टू 1800. Okay, now find the price index number of wheat for the year 2015 with the base year 14 and interpret. Okay, हमें क्या करना है 2015 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. सो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ wheat for the year 2015 I इक्वल टू फार्मूला क्या है हमारा P1 अपन P0 into 100. सो 1800 upon 1600 into 100. So answer is 112.5. Okay, this value is more than 200. Okay, so it can be said that there is rise of 112.5 minus 100 equal to 12.5% in the price of wheat per quintal in the year 2015 as compared to the year 2014. Now question 2. The last year index number is 8 upon 9 times the Fisher index number. Okay, the Fisher index number is 180 and find the Passey index number. Okay, यहाँ हमें 3 इंडेक्स नंबर का यूज़ करना है, लास्ट ईयर, पासे एंड फिशर. ओके, यहाँ हमें पासे इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. ओके, फिशर इंडेक्स नंबर दिया है और ये एक सेंटेंस है, देखो कौन सा, द लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर इज 8 upon 9 टाइम्स ऑफ द फिशर नंबर. ओके, लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर जो है जो फिशर से कितना गुना ज़्यादा है 8 upon 9 गुना ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे, पहले तो द लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर इज 8 upon 9 टाइम्स द फिशर इंडेक्स नंबर. सो आई लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर, सो IL इक्वल टू 8 upon 9 इंटू IF. ओके, हियर अभी हमें IF ऑलरेडी दिया है, यह देखो द फिशर इंडेक्स नंबर कितना दिया है 180. तो हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला में 180 रख देंगे. ओके, तो हम IL फाइंड कर सकते हैं. तो IL कितना आया 160. अभी हमें फिशर का दूसरा फॉर्मूला पता है, IF इक्वल टू रूट IL इंटू IP. चलो IF 180 रख दिया, IL कितना रख दिया 160 रख दिया और IP. चलो अभी रूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे. सो 180 होल स्क्वायर, और इतना याद रखना कि रूट का होल स्क्वायर करे तो अंदर जो रूट में जो वैल्यू है वही आती है. तो यहाँ 160 इंटू IP. ओके, तो हम इजीली IP फाइंड कर सकते हैं. 180 इंटू 180 अपन यहाँ 160 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया. सो आंसर इज 202.5. ओके, नाउ क्वेश्चन 3. The production of an item in the year 2015 has increased by 3 times the production in the base year. Find the index number of production for the year 2015. Okay, यहाँ ऐसा कहा है कि प्रोडक्शन जो है वो 3 गुना बड़ा है. ओके, किसके कंपैरिजन में, बेस ईयर के. तो कंसीडर द इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर इज 100. हमें पता है कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है 100. The production has increased by 3 times in the year 2015. So, production index number of the year 2015 equal to formula index number of base year plus increase in index number in current year. Okay, index number of base year कितना है 100 है. Okay, उसमें कितना गुना बढ़ा, 3 गुना. So 3 into 100. So 100 plus 3 into 100, 300. So answer is 400. Okay, now question 4. Here sigma P1 Q0 is to sigma P0 Q0 equal to 3 is to 2 and sigma P1 Q1 is to sigma P0 Q1 equal to 5 is to 3. Find IL, IP and IF. माने यहाँ आपको लास्ट ईयर पासे एंड फिशर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो, आप जो इज टू फॉर्म में दिया है उसे हमने डिवाइड फॉर्म में लिख लिया. सो सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 इक्वल टू 3/2. ओके, सो IL का फॉर्मूला हमें पता है. IL का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. चलो यहाँ P1 Q0 और P0 Q0 सिग्मा सिग्मा क्या है 3/2. तो 3/2 इंटू 100. सो आंसर इज 150.
वैसे ही ये फॉर्म जो है उसे भी हम लिख लेंगे सिग्मा P1 Q1 अपन सिग्मा P0 Q1 इक्वल टू 5/3। ओके, नाउ IP इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q1 अपन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अगेन हम ये वैल्यू रख देंगे, सो 5/3 इंटू 100, सो आंसर इज 166.67। चलो, जब भी हमारे पास IL एंड IP हो तो IF हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर IF इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा, रूट IL इंटू IP। चलो दोनों वैल्यू डाल दो, अंदर लिख लो। ओके, तो क्या आंसर आया, 158.12। ओके, इसी प्रकार से हम IL, IP और IF फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, if the average monthly disposable income of middle class family in the year 2014 is 14,400 and if the cost of living index number for the year 2015 with the base year 2014 is 115, then estimate the average monthly disposable income of these families in the year 2015. Okay, here 2014 is a base year and 2015 is a current year. Okay, यहाँ हमें 2014 की डिस्पोजेबल इनकम दे दी है और 2015 का हमें इनकम फाइंड करना है। ओके, so the cost of living index number of the middle class family for the year 2015 is 115 with the base year 2014. Hence the index number has increased by 115 minus 100 equal to 15% as compared to the base year. Thus there should be 15% rise in the average disposable income of middle class family. Okay, therefore एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली इज इक्वल टू, ओके, बेस ईयर में कितनी इनकम थी 14,400 और अभी कितना इंक्रीज हुआ 15%, सो 14,400 इंटू 15/100। ओके, सो आंसर इज 14,400 प्लस 2160, so total is 16,560. Hence the average monthly disposable income of these families in the year 2015 should be rupees 16,560. Question 6. If the cost of living index number of the current year has increased to 180 from the base year index number 100 and if the average income of workers has increased from 6,000 to 9,000, is this an increase or decrease in the purchasing power of the workers? How much is it? Okay, यहाँ हमें बेस ईयर एंड करंट ईयर का इंडेक्स नंबर दे दिया है। ओके, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 है और करंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है 180। ओके, चलो, वैसे बेस ईयर की आपको इनकम दे दी है वर्कर्स की कितनी, यहाँ 6,000। ओके, एंड करंट ईयर की कितनी है 9,000। ओके, तो हमें ये फाइंड करना कि परचेसिंग पावर इंक्रीज होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए, तो होता है तो कितना होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडेक्स नंबर हैज़ इंक्रीज टू 180 फ्रॉम 100, हैंस विच मीन्स दैट देर इज एन increase of 80%. Okay, hence the income should be also increased by 80%. कैसे, 180 minus 100 equal to 80%. Therefore एवरेज इनकम इक्वल टू, चलो बेस ईयर की इनकम कितनी थी 6,000 और उसमें कितना इंक्रीज हुआ 80%, सो 6,000 प्लस 6,000 इंटू 80/100, सो आंसर इज 6,000 प्लस 4,800 इक्वल टू 10,800। ओके, हैंस द एवरेज इनकम ऑफ वर्कर शुड बी 10,800। अभी बेस ईयर में एक्चुअल उन लोग की इनकम कितनी होनी चाहिए 10,800 होनी चाहिए, बट क्वेश्चन में कितना दिया है 9,000। ओके, बट द एवरेज इनकम ऑफ वर्कर्स हैज़ इंक्रीज टू रुपीज़ 9,000, थस देयर इज डिक्रीज ऑफ 10,800 and minus 9,000 equal to rupees 1,800 in the average income with reference to the index number. Hence, it can be said that there is decrease in their purchasing power. Question 7. The wholesale price index number of year 2015 and 2016 found to be 150.2 and 165.7 respectively. Find the rate of
इन्फ्लेक्शन यूजिंग इंडेक्स नंबर्स ऑफ बोथ द ईयर। ओके, यहाँ हमें 2015 एंड 2016 का होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर दे दिया है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ फ्लक्चुएशन इन्फ्लेक्शन। सो हियर फॉर्मूला रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन इक्वल टू होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपन होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। चलो, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर हमारा क्या है? 2016। ओके, और 2016 का इंडेक्स नंबर क्या है? 165.7। ओके, और प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2015, और उसका इंडेक्स नंबर क्या है? 150.2। सो 165.7 माइनस 152.2 अपन 152/2 150.2 into 100. Okay, so answer is 10.3196. So round figure 10.32. Thus the rate of inflation is 10.32. ओके, यहाँ मैंने आपको शॉर्ट सम दिए हैं 7 to 14 तक। उसमें से 10 नंबर का सम हमने लास्ट पार्ट में ऑलरेडी होमवर्क में दिया था, लेकिन वापस आप कर सकते हो। ओके, चलो, यहाँ मैंने आपको MCQ दिए हैं। उसमें MCQ 2 से 12 तक के हैं। तो फर्स्ट नंबर का MCQ आपका मैंने आंसर शीट में दिया है, वहाँ से आप लिख लेना। ये सारे MCQ आपके अपनी नोटबुक में लिखने और लिखकर बाय हार्ट करने हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिया है 1 to 18 तक के, ये भी आपको अपने नोटबुक में लिख के बाय हार्ट करने हैं। ओके, चलो, ये फर्स्ट नंबर का MCQ यहाँ से आप लिख लेना। ओके, लास्ट पार्ट में मैंने जो आपको होमवर्क दिया उसके सारे आंसर यहाँ मैंने आपको दिए हैं, तो आप अपने आंसर टैली कर लेना। ओके, आज हमारा ये इंडेक्स नंबर चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ओके, ये चैप्टर बोर्ड की एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का आता है। तो देखो कैसे, सेक्शन ए में MCQ 1 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स, सेक्शन बी से सेक्शन सी में 2 मार्क्स का एक सम, सेक्शन डी में 3 मार्क्स का एक सम, और सेक्शन एफ में 5 मार्क्स का एक सम आएगा। ओके, सो टोटल वेट 12। ओके, थैंक यू।